Praise the Lord and welcome once again Praise the Lord और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है for another gathering of ourselves together. इस प्रकार से हमारा एकत्रित होने में। Though we are physically away from one another, यद्यपि प्रिय लोगों हम एक दूसरे से बहुत दूर स्थानों में बैठे हैं, let's be one in the spirit and worship God together. लेकिन हम आत्मा में अभी एक हो जाएं और जब हम प्रभु की आराधना करते हैं। Amen. आमेन। We sing that song, He poured in the oil and the wine. उस गीत को हम गाएंगे, उसने दाखरस और तेल उंडेला। Amen. आमेन। दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे धुआं पाया, यरीहो के किनारे धुआं पाया, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे धुआं पाया, यरीहो के किनारे धुआं पाया, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। For he poured in the oil and the wine, the kind that restoreth my soul. He found me bleeding, dying on the Jericho road, and he poured in the oil and the wine. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. I have Jesus on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. I have Jesus on my mind. Hallelujah. Hallelujah. Shall we sing that song together? क्यों ना उस गीत को हम गाएंगे। Blessing and honor and glory be thine. बरकत और इज्जत और जय तेरी हो। Put your hands together. Sing. ताली बजाकर इस गीत को गाइए। Blessing and honor and glory be thine, and glory be thine, and glory be thine. Blessing and honor and glory be thine, for thou art on the throne. Praise him, praise him, all his saints adore him. Praise him, praise him, for he is on the throne. Blessing and honor and glory be thine, and glory be thine, and glory be thine. Blessing and honor and glory be thine, for thou art on the throne. बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, कि तू ही तक पर है।
बोल हालेलुया, जय हालेलुया, तारीफ हालेलुया, मुबारक उसका नाम। उसके आगे गिर के सिजदा कर दिल जान से, मालिक है असल बादशाह भी। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shall we sing a worship chorus? क्यों ना एक आराधना के गीत को हम गाएं। Thy loving kindness is better than life. तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम। My lips shall praise thee. मेरे ओठों से मैं तेरी स्तुति करूंगा। Thus will I bless thee. और यूं मैं तुझे धन्य कहूंगा। Thy loving kindness, Lord, तेरी करुणा है प्रभु is better than life. जीवन से भी उत्तम। Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I Thy loving kindness is better than life. I lift my hands, Lord, unto your name. I lift my hands, Lord, unto your name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. तेरी करुणा जीवन से उत्तम, तेरी करुणा जीवन से उत्तम। ओठों से तेरी स्तुति करूँगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तेरी स्तुति करूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ करता रहूंगा तेरी प्रशंसा, करता रहूंगा तेरी प्रशंसा। ओठों से तेरी स्तुति करूँगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तेरी स्तुति करूंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Hallelujah. Worship Him.
Bless the Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। and all that is within me bless His holy name. जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा का, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा का। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Ria Sini Mama Mama Suru. Oh, Rana Maria receive glory. And when Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, for joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, and
bow our heads in your presence this morning. प्रभु आज के इस दिन में हम अपने सरों को तेरे सामने झुकाते हैं। You promised us that where 2 or 3 will gather in your name, you will be there. तूने हमसे वायदा किया है कि जहां पर भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे उनके मध्य में मैं हूं, तूने कहा। And all that we need is your presence, Lord. और आज किस समय हमें जिस बात की जरूरत है वो तेरी उपस्थिति है प्रभु। Even as our heads are bowed in our homes, जैसे हम सभी के सर अपने अपने घरों में झुके हुए हैं, we pray, Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा हम तुझसे मांगते हैं, overshadow us with your presence. अपनी उपस्थिति की छाया हम पर कर दे। Banish every spirit of the enemy. दुश्मन की हर एक ताकत को हटा दे। May your glorious light shine in every house. तेरी महिमामय रोशनी हर एक घरों के ऊपर चमकने पाए। Darkness will depart. अंधकार दूर हो। Your spirit take control over तेरी it. पवित्र आत्मा सब बातों के ऊपर नियंत्रण ले ले। Bless us, O Father, we seek your face. पिताजी आशीष दे, आज हम तेरी बाट जोहते हैं। We pray this prayer in the matchless, wonderful, glorious name of Jesus. इस प्रार्थना को अपने प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थी नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank the Lord once again we could come together. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के वचन में से देखने के लिए इकट्ठे हैं। And we'll continue to where we left last time. बीते समय हम वचन से जहाँ देख रहे थे, जहाँ छोड़े थे वहाँ फिर से देखेंगे। We discussed last time about the Holy Spirit. और बीते समय हमने पवित्र आत्मा के विषय में चर्चा किया था। And people are blessed. और लोगों ने उस वचन को पाकर आशीष पाया। Some rang back and told me that some of them got baptized in the Holy Spirit. और कुछ लोगों से सूचना मिली कि परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। So open yourself to the scripture. इसलिए आप अपने आप को भी प्रभु के वचन के लिए खोल कर रखें। So we had discussed few things. कुछ बातों को हमने बीते समय में आत्मा के विषय में चर्चा किया था। We had talked about the person of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में हमने देखा था। We had talked about the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य को हमने देखा था। And then we talked about the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में देखा था। And we did not touch the gifts of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फल और उसके दानों के विषय में हमने बीते सप्ताह नहीं देखा। But we did say that we will clarify certain things. We will try to do it. लेकिन हमने आपसे वायदा किया था कि कुछ बातें जो लोगों के मन में अस्पष्ट है हम उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। We said last time that we will talk to you about what is blasphemy of the Holy Spirit. और बीते समय हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि पवित्र आत्मा की निंदा करना क्या बात है। And we'll try to see from the scripture what scripture has to say. और पवित्र शास्त्र में से हम देखने का प्रयास करेंगे वचन उसके बारे में क्या बोलता है। And shall we turn our Bibles to the 12th chapter of Matthew's Gospel? और इसलिए आइए हम मत्ती के सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय को खोल लें। And we will read from verse 22. और उसकी 22 आयत से हम पढ़ लेंगे। We must go into the context of the situation. ताकि जो वहाँ परिस्थिति थी उसके संदर्भ में हम उसे देख सकें। 12th chapter Matthew's Gospel. मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय Reading from verse 22. 22 आयत से। Then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb, and he healed him in so much that the blind and the dumb both spake and saw. तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। And all the people were amazed and said, Is not this David, son of David? इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by the Beelzebub, the prince of the devils. परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता से के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। And Jesus knew their thoughts and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand.
उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges. भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। Or else how can one enter into a strong man's house and spoil his goods, except he first bind the strong man, and then he shall spoil his house? या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad. जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। We got to see that this is in context with what has happened some time earlier. हमें इस बात को इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि इसके पहले क्या हुआ था। Now we ask, what is blasphemy of the Holy Spirit? और अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पवित्र आत्मा की निंदा किस बात को कहते हैं। Something we must understand. कुछ बात जो हमें समझनी चाहिए। Don't get into arguments and discussions when we do not know much about it. जब हम पवित्र आत्मा के विषय में यदि ज़्यादा नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बहस या तर्क से हमें बचना चाहिए। Don't sit with those people who talk all kinds of things against the Holy Spirit. और ऐसे लोगों की संगति में बैठना भी उचित नहीं जो पवित्र आत्मा की निंदा और उसके विरोध में बात कहते हैं। And even if you shake your head and you're not in agreement with them, और यदि उनके विरोध की बातों में यदि आप सहमत होकर अपना सर हिलाते हैं, you are opening yourself for the judgment of God. आप अपने आप को परमेश्वर के न्याय के लिए खोल देते हैं। So we see over here यहाँ पर हम वचन से देखेंगे that Jesus is talking in context to what has happened earlier. यीशु मसीह ने आत्मा के निंदा की जो बात कही वो उसके ठीक पहले जो घटना घटी उसी संदर्भ में उसने कहा था। Because when he had cast out a spirit from a person, क्योंकि अभी अभी यीशु मसीह ने एक अंधे गूंगे जिसमें दुष्टात्मा थी उसको निकाला था। they should have been excited. उन लोगों को तो चाहिए था कि वे काफी उत्साहित होते, But they were wanting to catch Jesus on every turn. लेकिन वो हर कदम कदम यीशु मसीह की गलती को पकड़ना चाहते थे। You will find this kind of category of people. आप इस प्रकार के वर्ग के लोगों को जगह जगह पाएंगे। And also in the church. और यहाँ तक कि कलीसिया के अंदर भी हमें ऐसे लोग मिल जाते You हैं। talk of exploits and miracles, they will still find out some fault. यदि आप परमेश्वर ने जो चमत्कार और चिन्ह की उसकी चर्चा करें तो वो वहां पर कोई कमी को ढूंढते हैं। Instead of praising God for such a mighty miracle that has taken इसके place. बजाय कि जो इतना अद्भुत चमत्कार यहाँ पर हो गया था उसकी तारीफ करने के बजाय They had brought one man possessed with devils. एक दुष्टात्मा से ग्रसित आदमी था, उसको लेकर लोग आए थे। He was both blind and dumb.
वो अंधा भी था और गूंगा भी था। What a miserable life. कितनी दुर्दशा भरा जीवन था उसका। He couldn't see, वो न देख सकता था he couldn't speak. और न बोल सकता था। He could hear. वो न सुन सकता था। He might be able to hear. हो सकता है वो सुन सकता हो। So he's listening, वो सुन तो रहा but cannot express. लेकिन वो गूंगा था, बोल नहीं पाता था। So devil had crushed his life. और शैतान ने इस मनुष्य के जिंदगी को ऐसा कुचल कर रखा था। And when Jesus healed him, जब यीशु मसीह ने इस आदमी को चंगा किया, Hallelujah. हालेलुया, he both saw तो वो देखने भी लगा and he spake. और बोलने भी लगा। And all the people are amazed. और सब लोग जो वहां पर खड़े थे सब चकित हो गए। They said, is not this the David's son? और उन्होंने कहा ये क्या दाऊद की संतान है। Amen. Amen. But the Pharisees, परंतु जो फरीसी लोग थे, when he heard it, जब उन्होंने इस चमत्कार को सुना, they came out with one accusation. वो लोग एक आरोप को लेकर वहां आए। They were using very light words. वो बहुत ही हल्के किस्म का शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। And they said, और उन्होंने क्या कहा, this fellow ये व्यक्ति doth cast out devils by Beelzebub. ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। The prince of devils. जो कि शैतान का राजकुमार है, उसकी सहायता से निकालता है। They had some knowledge of demonology. इन फरीसियों को दुष्ट आत्मा और उनके सरदार और इन सब के बारे में कुछ जानकारी तो थी। Today we must know that there are a lot of spiritual warfare going on. आज हमको इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि एक आत्मिक मल्ल युद्ध हो रहा है। Many people say, if I see the devil, then only I'll believe. बहुत से लोग ये कहते हैं कि यदि मैं दुष्ट आत्मा को जब देखूंगा तब विश्वास करूंगा। But you will be too late, my friend. मेरे दोस्त, आप देखने तक के लिए आप बहुत विलंब कर जाएंगे, Because that place will be hell. क्योंकि वो जगह जहां दुष्ट आत्माएं दिखेगी वो केवल नरक है। You believe what the Bible says. बाइबल जो बोलती है उस पर विश्वास कर Don't say लीजिए। it ended up with New Testament. ये मत कहिए कि नए नियम के साथ में सारे चमत्कार खत्म हो It गए। ended up with apostles. प्रेरितों के बाद चमत्कार नहीं होते। Nothing happens nowadays. ऐसा ना कहे कि आजकल के दिन चमत्कार नहीं होता। You come to our part of the city, a country. आप हमारे देश के इन भागों में आप आइए। You will come in confront with all kinds of demonic forces. आपका सामना तरह तरह की जो दुष्ट आत्माएं और ऐसी आत्माओं के साथ आपका सामना होगा। Some people are all the time finding the root of the matter. और लोग हर समय किसी समस्या का जड़ ढूंढने का प्रयास करते The हैं। Greek root and the Hebrew root. और उसका यूनानी जो रूट है या उसका हिब्रू भाषा में उसका मूल शब्द क्या है ढूंढते हैं। Only the root and there is no fruit. और केवल जड़ ही ढूंढते रहे लेकिन कोई फल नहीं मिला। When you are confronted with the evil spirit, जब आपका सामना जीते जागते दुष्टात्मा से होता है, your theology will be in question. आपकी सारी अध्ययन जो आपने धार्मिक अध्ययन पाया है उस पे बड़ा सवाल लग जाएगा। Get back to simple word of God. परमेश्वर के साधारण वचन पे वापस In आइए। my name you shall cast out यीशु demons. मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम दुष्टात्माओं को निकालोगे। Amen. आमीन। We can have big degrees. हम बड़ी बड़ी उपाधियों को हासिल कर सकते हैं, But one qualification was there परंतु एक वहां पर खासियत थी about Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में। He confirmed his ministry with signs and wonders. उसने अपनी सेवकाई को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रमाणित किया, That you will read in the book of Acts. जिसको आप प्रेरितों के काम की किताब में पढ़ते हैं। He manifested forth his glory यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट करी by doing miracles. चमत्कारों को करने के द्वारा। Days of miracles are not over. चमत्कार और चिन्ह के दिन लदे नहीं हैं। Don't put question marks when God begins to work. जब परमेश्वर कुछ काम करना आरंभ करता है तो कभी सवाल मत करिए। Instead of getting happy, these people were getting mad. ये लोग इतने जो वहां पर लोग उपस्थित थे, जन समुदाय इतने खुश थे, लेकिन फरीसी लोग नाराज थे। He cast out demons by Beelzebub. और वो लोगों को बताने लगे नहीं नहीं ये तो दुष्टात्माओं की सरदार की मदद से निकालता है। So then what is blasphemy against the Holy Spirit? फिर पवित्र आत्मा की निंदा क्या है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। Blasphemy means निंदा करने का अर्थ है to speak of a supreme being in terms of irreverence. एक उत्तम आत्मिक प्राणी परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध में बिना सम्मान के बातों को कहना, To revile, एक किस्म से बेइज्जती करना to speak reproachfully, और बड़ी खराब मकसद के साथ में अपमान करने की मंशा से बोलना, or let us say in our own terms, या फिर हम अपनी भाषा में कहें तो to speak evil of, किसी की बुराई करना, to utter abuse. किसी के लिए अपशब्द बोल देना।
to speak reproachfully. और बेइज्जत के साथ में वचनों को, शब्दों को बोलना। So when we see the word, जब हम आज दुनिया को देखते हैं, and the word of God, when we see, माफ करें, परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, you find this word blasphemy is also in the Old Testament. आप पाएंगे कि निंदा नाम का ये शब्द पुराने नियम में भी पाया जाता है। Anybody disrespectfully talking, they say that fellow blasphemed. और जो कोई भी गैर सम्मान के साथ बात करता था तो लोग कहते थे कि उस आदमी ने निंदा की है। And that we have got so many references in the Old Testament. पुराने नियम में भी निंदा को लेकर बहुत से भाग को हम पाते हैं। And certain times if you said that you are a man of God, और पुराने समय में यदि कोई व्यक्ति कहता था कि मैं परमेश्वर का जन है, then they said this was blasphemy. तो लोग कहते थे कि ये निंदा की बात है। Like when Jesus said जब यीशु मसीह ने ये कहा about himself, अपने बारे में, they said this is blasphemy. तो वो ये कहने लगे कि ये निंदा करता है। How can a man forgive sins? एक मनुष्य कैसे मनुष्य के पाप को माफ कर सकता है, वो सवाल करने When he लगे। said to the man of palsy, your sins are forgiven. तब जब यीशु मसीह ने उस लकवे के मारे आदमी से कहा था कि तेरे पाप क्षमा हुए, They said, who can forgive sins but God? तो ये फरीसी लोग सवाल करने लगे कि परमेश्वर को छोड़ और कौन माफ कर सकता है This पाप man को? blasphemeth और ये कहने लगे कि यीशु मसीह निंदा करता है because he makes himself to be God. क्योंकि वो अपने आप को ऐसा कहने के द्वारा परमेश्वर के तुल्य बनाता है। They never knew he was 100% God. और वो जानते नहीं थे कि वास्तव में वो 100% परमेश्वर है। So Jesus said to prove the truth, prove to you that I am God. और यीशु मसीह ने उनको ये प्रमाणित करने के लिए कि वो परमेश्वर है, That you might know Son of Man has power on earth to forgive sins. उसने कहा ताकि तुम ये जान लो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। He said to the sick of palsy, take up your bed and walk. उसने फिर उस लकवे से मारे आदमी से कहा, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग जा। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, So over here when we reading, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं, this is not somebody's slip of tongue or lack of knowledge. निंदा का यहाँ पर अर्थ किसी अज्ञानता पूर्वक कुछ कह देना या जुबान फिसल कर कुछ कह देना नहीं है। Sometimes you might have worried, oh my, have I sinned that unpardonable sin? और कभी कभी आप अपने मन में भी सोचे होंगे कि क्या मैंने उस पाप को कर दिया जिसकी कोई क्षमा नहीं है। The very fact that you are realizing that is the conviction of the Holy Spirit. ये हकीकत कि आपको एहसास हो रहा है कि आपने कुछ गलती की है या नहीं, ये पवित्र आत्मा का कायलपन है आपके जीवन के ऊपर। The very fact you are guilty about it. और आपको अपने अपराध का बोध होना ही इस बात का प्रमाण है। It is from the Holy Ghost that He is convicting you. पवित्र आत्मा ही लोगों को कायल करता है। Listen, सुनिए, it is not slip. ये जुबान का फिसलने को निंदा नहीं It बोलते। is not person speaking something in ignorance. और अज्ञानतावश कुछ बात को आत्मा के विषय में कह देने को भी निंदा नहीं किया कहा जाता है। Blasphemy against the Holy Ghost. परंतु पवित्र आत्मा की निंदा किसे कहते हैं? Knowledgeable, जानकर, willful, इच्छा पूर्ण तरीके से deliberately और जानबूझकर attributing the things of God to the devil. परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य को शैतान का कार्य कहना निंदा की श्रेणी में आता है। That's why don't if you don't know about tongues, don't say it is from the devil. और यदि आप अन्य भाषा के विषय में जो बाइबल में लिखा नहीं जानते तो ये कभी मत कहिए कि शैतान की ओर से है। You say, do devils speak in tongues? और क्या शैतान अन्य भाषा में बात करते हैं? He is a counterfeit man. शैतान भी नकल जरूर करता है। He can do anything counterfeit वो to the बिल्कुल truth. भी परमेश्वर का और सत्य का सबका नकल वो करता है। Just because there is a counterfeit, don't think there is not a real one. लेकिन सिर्फ इसीलिए कि वहां पर एक नकली भी दुनिया में पाया जाता है, आप असली को नकली की श्रेणी में कभी ना लाएं। Don't joke about the tongues. जो अन्य भाषा वास्तव की है आत्मा की ओर से, उसको ना दबाएं। Don't talk lightly about it. उसके बारे में हल्के तौर से बात ना करें। You might cross one line. हो सकता है ऐसे करने के द्वारा आप एक ऐसी सीमा को पार कर रहे हैं। This sin, ये पाप, blasphemy, ये निंदा
is knowledgeable. ये आप जानबूझ के कर रहे हैं। These men knew Jesus was a righteous man. ये व्यक्ति जो लोग विरोध कर रहे थे, इनको अच्छी तरह पता था यीशु मसीह एक धर्मी मनुष्य The है। ordinary ones were saying, सामान्य लोग कह रहे थे, this is son of David. ये तो दाऊद की संतान है, Meaning Messiah has come. मसीहा आ गया है, वो कह रहे थे। They are recognizing the signs that are mentioned in the scripture. वे लोग तो उस चिन्ह को जो शास्त्र में लिखी उसका वर्णन कर रहे थे। But here, लेकिन यहाँ पर देखिए, in spite of seeing such great things which God has done, परमेश्वर ने जो कुछ बड़े चमत्कारिक काम वहां पर किए थे, if they had not said that he's doing it by the devil, they would have escaped judgment. और वो यदि न्याय से बच सकते थे, यदि वो बोलते कि शैतान ने किया, Okay, no, he's not doing this by the devil. और इस शैतान के द्वारा किया कर रहा है, ऐसा ना बोलकर वो बच सकते थे। But लेकिन they were determined. लेकिन वो लोग तय कर चुके थे He cast out demons by कि Beelzebub. ये बोलना कि यीशु मसीह ने जो आत्मा निकाली है वो शैतान के सरदार की मदद से निकाली है। Amen. मैन, So it is knowledgeable, ये इसलिए ज्ञानपूर्वक था, deliberate, जानबूझकर था, willfully, इच्छा के साथ कहा गया था। meaning you are all alert in your mind मतलब आप अपने ध्यान में आपको सारी सच्चाई पता थी, and you are attributing the work of God to the devil. इसके बावजूद भी आप परमेश्वर के कार्य को शैतान का कार्य बताना चाह रहे थे। Amen. आमेन। In a sense, you're speaking against God. और सार में यदि कहें तो आप परमेश्वर के विरोध में कह रहे थे। Evil speaking. दुष्ट बातें कहना, Blasphemy against the Holy Spirit पवित्र आत्मा के विरुद्ध में निंदा, is regarded by some people, कुछ लोगों के द्वारा ये माना जाता है। some scholars say, कुछ अध्ययनकर्ता ये कहते हैं it is continual rejection of the gospel. सुसमाचार का बार बार इनकार करना, Continually refusing to listen to the voice of the Spirit. बार बार पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने से इनकार करना। So he automatically excludes himself from pardon. ऐसा व्यक्ति अपने आप को आखिरकार क्षमा प्राप्ति से अलग कर लेता है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। But we say, परंतु हम ये कह रहे हैं, or others regard it as attributing the work of God to the devil. कि परमेश्वर के हाथ से किए गए काम को शैतान के हाथ का कार्य कहना, ये निंदा कहलाता है। Amen. Amen. This is reference of sinning against the person of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व पर के विरोध में पाप करने की श्रेणी में See, आता है। the question is not blasphemy against the Holy Spirit only. देखिए, सवाल यहाँ पर पवित्र आत्मा की निंदा मात्र की नहीं थी, Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, if any man will sin against the Son of Man, यदि कोई भी मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा he will be forgiven. तो उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। Now what is this? ये क्या बात है? Sinning against God will be forgiven. परमेश्वर के विरोध में यदि कोई बात कही गई है तो वो क्षमा मिल जाएगी, But sinning against the Holy Ghost लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में किए गए पाप की has no forgiveness. कोई क्षमा नहीं है। Why? ऐसा क्यों? All three are one. जब हम कहते हैं कि ये तीनों त्रिएक परमेश्वर है, We must know, हम इस बात को जानना चाहिए, in being all three are one and three different persons, ये तीनों एक होने के द्वारा और एक ही होने के भी बावजूद they have different jobs. उनके अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, They have different offices. उनके अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। For God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, He gave His Son. उसने दिया अपने इकलौते बेटे All को। good, perfect gifts come from Father of lights. सारे अच्छे और भले वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। So God gave His best. परमेश्वर ने अपना सबसे जो बेहतरीन उसका था उसे दे दिया, And Jesus और यीशु ने gave His life. अपना जीवन दे दिया।
shed his blood. अपना लहू बहा दिया, He did his job. उसने अपना कार्य पूरा He किया, preached the gospel. उसने सुसमाचार शुभ संदेश लोगों को बताया, He gave his life as a ransom. अपना जीवन एक प्रायश्चित के रूप में दिया, And then he appointed people to go and preach the gospel. और उसके बाद उसने लोगों को नियुक्त किया कि वो जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। He sent forth the Holy Ghost. उसने पवित्र आत्मा को भेजा। He now makes intercession for us. अब वो हमारे लिए आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करता है पिता से। So he has a job पिता पुत्र के पास एक कार्य है, and the Holy Ghost has his job. और उसके बाद पवित्र आत्मा का भी अपना एक कार्य है। Understand this. उसे समझ लीजिए। What is the job of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? The office of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का कार्य क्षेत्र। We are living in the times of the Holy Spirit age. हम पवित्र आत्मा के युग में आज रह रहे हैं प्रियों। When you read John's Gospel, जब आप यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ते हैं, 16th chapter, उसका 16 अध्याय and from reading from verse 8, और उसकी 16 की 8 आयत से यदि आप पढ़ें, he says, वहां पर ऐसा लिखा है, 16th chapter from verse 8, यूहन्ना 16 और उसका 8 से आगे, he's talking about the Holy Ghost. वहां वो पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है। When he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. वो आकर, पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। Of sin because they believe not on me. पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं Of करते, righteousness because I go to my Father. और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, Of judgment because the prince of the world is judged. न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। Okay, now this is what the Holy Ghost does. ये पवित्र आत्मा का कार्य है। Last time we say बीते समय हमने देखा था, he has a job, पवित्र आत्मा के पास में कार्य है, his ministry उसकी जो सेवकाई है of to the world, संसार के प्रति जो उसकी सेवकाई है, to the church, चर्च के लिए वो जो कार्य करता है, to the believer. विश्वासियों के जीवन में जो कार्य करता है। Now here he is saying, यहाँ पर वो कह रहा है, in some other version it will say, कुछ दूसरे अनुवाद में यदि आप देखें when लिखा he है, will come, जब वह आएगा he will convict the world of their sin. तो वह संसार को उसके पापों के विषय में कायल करेगा। Of sin पाप के विषय में इसलिए because they did not receive, क्योंकि उन्होंने believe on Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उनके इस पाप के विषय कायल करेगा। What is the ultimate sin? आखिरतम जो पाप है वो क्या है? Which will take people to hell. जो लोगों को नरक लेकर चली जा रही है। It is rejection of Jesus Christ and the work of the cross of Calvary. वो यीशु मसीह का इनकार करना है और कलवरी के कार्य को इनकार करना है। It's not that you sin. आपने पाप किया वो मात्र नहीं, It's not. It is that you are not receiving the forgiveness which God wants to give us. बात यह है कि जो क्षमा परमेश्वर हमें यीशु में देना चाहता है उसको हमने ग्रहण नहीं किया, ये हमें नरक ले जा So सकता the Holy है। Ghost convicts them. इसलिए पवित्र आत्मा लोगों को उनके पापों के विषय कायल करता है, And so the people are, when you reject Christ, ताकि जब लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं they open themselves to condemnation. वो अपने आप को न्याय के लिए खोल देते हैं। And then he says of righteousness. और फिर वो कहता है धार्मिकता के विषय में उनको निरुत्तर कर देता है। There is a lot of things we can talk on this, इस पे हम बहुत सी बातें कर सकते हैं, but we know this. लेकिन इस बात को हम देखें, Our righteousness is like filthy rags. हमारी जो धार्मिकता है वो मैले और चिथड़ों के समान है। Amen. आमेन। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, unless your righteousness increases more than the righteousness of scribes and Pharisees, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, you shall in no wise enter the kingdom of God. तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। And again, और फिर से the कहता है, scripture explains us. शास्त्र समझाती है, All our good works cannot attain to that righteousness. हमारे सारे भले काम भी उस उत्तमता को हासिल नहीं कर सकते। So how can we be made righteous? फिर कैसे हम धार्मिक बन सकते हैं? Jesus Christ यीशु मसीह के द्वारा becomes our righteousness. वो हमारा धार्मिकता बन जाता है। He who knew no sin वो यीशु जो पाप से अनजान था became sin for us, हमारे लिए पाप बन गया, that you and I ताकि आप और मैं might become righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता ठहर जाएं। So the Holy Ghost convicts people. इसलिए पवित्र आत्मा लोगों को कायल करता है How इस much विषय में works, भी, good works you can do. कि तुम कितना अच्छे काम, कितने बड़े कर्म करोगे, You cannot become righteous. सब करके भी Enough. तुम
इतना पर्याप्त भी नहीं कर सकोगे कि तुम धर्मी ठहर जाओ to satisfy God's demands. परमेश्वर के स्तर में या उसकी मांग के स्तर में आने के लिए। There's only one thing, एक ही काम है, righteousness of Christ. यीशु मसीह की धार्मिकता पहन लो। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And we are safe. और ऐसा करके हम सुरक्षित हो जाते हैं। And thirdly, और तीसरी बात he says, वो कहता है our judgment, न्याय के विषय में वो संसार को निरुत्तर because the करता है। prince of the world is judged. जो कि संसार का जो सरदार है वो दोषी ठहराया गया है। What he's saying is, क्या कह रहा है वो? if you follow the devil यदि तुम शैतान के का अनुसरण करोगे and his principles, और उसके सिद्धांतों के पीछे चलोगे, then तब we are condemned. हम न्याय के अधीन हो गए। Now, अब I come to my point. मैं अब अपने विषय में वापस आ रहा हूँ। What is job of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का यहाँ पर कार्य क्या था? To convict us. कि हमको इन विषयों में कायल करे, अपराध बोध दे। Amen. आमेन। Just for example, उदाहरण स्वरूप the Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। A sinner comes एक पापी आता है and he speaks against the Father. और वो पिता के विरुद्ध में बोलता है। Now, who convicts? कायल उसके इस गलती के विषय में कौन करता है? Not the Son, पुत्र नहीं करता कायल, the Holy Spirit. परंतु परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है वो इस पापी आदमी को कायल करती He goes and says, this is wrong, don't do it. और पवित्र आत्मा उसको बोलती है कि तुमने जो पिता के विरुद्ध कहा है वो सही नहीं है। So maybe he might change. और संभव है इस कायलपन से वो पापी मनुष्य मुड़ जाए। The Son, पुत्र the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह, When this man speaks against the Son, एक पापी मनुष्य पुत्र के विरोध में निंदा करता है, who convicts? तब कौन उसको कायल करता है? Not the Son. पुत्र उसको कायल नहीं करता। The job of the Holy Ghost is to convict. पवित्र आत्मा का कार्य है कायल करना और वो उस पापी मनुष्य को कायल करता है। So he goes and speaks to this man, convicts him. और पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा इस व्यक्ति को उसके गलती का आभास कराती है Don't speak against the Son of कि Man. पुत्र के विरुद्ध में जो निंदा तुमने की है वो सही नहीं है। Repent, पश्चाताप कर लो turn back. और मुड़ जाओ। And that man might turn और back. वो आदमी संभव है मुड़ जाए और क्षमा पाले। But लेकिन if that man, यदि वो पापी मनुष्य, same man, वही व्यक्ति who had spoken against Father and the Son, जिस जो पिता के विरुद्ध भी बोलता, पुत्र के विरुद्ध भी बोला, he was convicted 2 times लेकिन दोनों दफा वो माफ कर दिया गया, कायल किया गया, by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा कायल किया But गया। now if he says something against the Holy Spirit, लेकिन अब वो यदि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा करता है, who will convict him? अब उसको कायल कौन करेगा? Because the person who convicts is the Holy Spirit. क्योंकि कायल करने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा ही है। That is why इसलिए there is no forgiveness. पाप की कोई क्षमा नहीं, Because क्योंकि you have grieved the person आपने उसी व्यक्ति को, उसी परमेश्वर को शोकित किया who is bringing you into salvation. जिसका कार्य आपको कायल करके उद्धार में लाना है। Amen. Amen. That's why Bible says, grieve not the Holy Spirit. of इसलिए God. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Amen. आमेन। So he's doing his job. वो अपने कार्य को कर रहा He's है, preparing the bride of Christ. वो मसीह की दुल्हन को वो तैयार कर रहा है। We got to cooperate with him together. हमें मिलकर उसके साथ में सहयोग करने की जरूरत है। Amen. आमेन। And there is so many more things to talk of, और पवित्र आत्मा के विषय में और बहुत सी बातें हैं करने को, but we will not touch it now. लेकिन उन सारी बातों को अभी हम नहीं देखेंगे। But it says over here, परंतु यहाँ एक बात लिखी है, and it says like this, यहाँ ऐसा वो कहता है of judgment, न्याय के विषय में। because the prince of the world is judged. The last thing, लिखा आखिरी बात जो लिखी है, क्योंकि सरदार जो है, संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। so what the devil is doing, शैतान आज क्या कर रहा है? he is using people वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है to disturb the work of God. परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ने के लिए। वो परमेश्वर के लोगों को वो गड़बड़ी में डालता है। You know, there are some people who are not afraid to speak against the Holy Spirit. ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा की निंदा करने में डरते नहीं हैं। They are always attacking
और हर समय वो आक्रमण की मुद्रा में रहते हैं। troubling the church. कलीसिया को वो सताने की मुद्रा में रहते हैं Always there is an argument, और हमेशा वहां पर एक बहस है and their main topic is about the Holy Ghost. और उनका जो मुख्य चर्चा का बिंदु है वो पवित्र आत्मा है। And some people make fun of that this is they are talking all what kind of things. और कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते और उसकी निंदा करते हुए हंसी उड़ाते हैं। They say, what is this speaking in tongues? और बोलते ये अन्य भाषा में बात करना क्या है, सब व्यंग उड़ाते हैं। One fellow came and told me, what you speak, I don't understand. एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक क्या बोलते हैं, मुझको कुछ समझ में नहीं आता। I said, who is talking to you? तो मैंने कहा कि मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा था। He who speaks in tongues speaks to God. बाइबल कहती जो अन्य भाषा में बात करता वो परमेश्वर से बातें करता That है। is bad manners, listening to somebody else talking. और ये तो वास्तव में बुरी आदत है किसी और के दोनों के बीच की बात को जाकर सुनना। He who speaks in tongues, he speaks mysteries to God. जो अन्य भाषा में बात Hallelujah. करता है वो रहस्य की बातें करता Man, you're है। missing out something. वो मनुष्य, आप यदि आत्मा का दान नहीं पाए तो आप कुछ चूक रहे हैं। Something goes special God has given you. ओ परमेश्वर ने आपके लिए कुछ खास और विशेष दिया है। Something which stumps the devil. कोई ऐसी चीज प्रभु ने दिया है जो शैतान को लड़खड़ा डालता He है। might be listening to all your prayers. वो शैतान आपकी सारी प्रार्थनाओं को भले सुनता हो, But when you begin to speak in tongues, लेकिन जिस पल आप अन्य भाषा में बोलने लगते हैं there is a short circuit is in the connection. वहां पर शैतान के उस सारे उसके जो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसके वार्तालाप में। Hallelujah. Hallelujah. That's why he doesn't want us to do it. इसलिए वो नहीं चाहता कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आत्मा को पाएं। Mind you, the Holy Ghost gave you utterance to speak. देखिए पवित्र आत्मा ने आपको ऐसी बोली दी है अन्य भाषा बोलने के In the लिए, day of Pentecost, और पेंतिकुस्त के दिन में ऐसा हुआ। they spake in tongues as the Spirit gave them और utterance. लिखा है जैसे आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी वो अन्य भाषा में बोलने लगे। They were not taught. उनको सिखाया नहीं गया कैसे बोलना है। This is some very, very unique thing. ये बहुत ही कुछ खास और अजीब सी बात To है। speak a language, you have to learn. एक कोई भी भाषा बोलने के लिए आपको उसको सीखना पड़ता है, But without learning, you're speaking. लेकिन आप बिना सीखे सीधा बोलने लगते हैं। Hallelujah. They heard हालेलुया। them speak. वो आम जनता ने उनको बोलते हुए, चेलों को बोलते सुना, Wonderful things of God. और वो क्या बोल रहे थे? परमेश्वर की अद्भुत कामों की चर्चा कर रहे थे। Amen. हाँ, As the Spirit gives you utterance. जैसे पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है। Oh, my friend, हाँ वो मेरे प्रिय मित्रों, get filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के दान को ले लीजिए, भर जाइए। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, don't play with anointing. अभिषेक के साथ में खिलवाड़ ना करें। Don't be after anointed people. अभिषिक्त लोगों के साथ उनका विरोध ना करें। Don't talk about anointed people. अभिषिक्त लोगों के विरुद्ध में निंदा ना करें। David was chased by Saul, and Saul was seeking to kill him. और दाऊद जो राजा था उसको शाऊल पीछा कर रहा था और शाऊल उसको मार डालना चाहता था। 3 times he got a chance. और 3 बार ऐसा हुआ कि दाऊद को मौका मिला। And one time his servant said to him, और एक बार दाऊद के सेवक ने भी उसको सलाह दी, this is the day. देख आज कितना शानदार दिन है, Pin him to the ground, he won't make another move. तेरा दुश्मन शाऊल को ऐसा एक बार में मारेंगे कि वो जमीन से उठेगा नहीं। You know what he said? आप जानते दाऊद ने लेकिन क्या बोला? Touch not the Lord's anointed. परमेश्वर के द्वारा वो अभिषेक किया गया है, उस पे हाथ नहीं उठाना। David respected the anointing that had Daud. come upon him. दाऊद Saul. परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त लोगों के ऊपर हाथ उठाने से घबराया। Second time again, दूसरी बार फिर उसको ऐसा ही अवसर मिला। he cut his cloth. उसने शाऊल के वस्त्र के एक छोर को चुपचाप से काट The लिया scripture says his heart smote him. और केवल कपड़े काटने से ही बाइबल कहती है उसके हृदय ने उसको कचोट दिया। ऐसा That's why he was a करने man after God's own heart. से इसलिए वचन कहता है दाऊद परमेश्वर के मन के अनुरूप मनुष्य था। In so much so Saul had temporal repentance during that time. और इतना हुआ कि दाऊद के इन कार्यों के कारण शाऊल पश्चाताप करने लग गया कि मैं किसका पीछा कर रहा हूं। Will an enemy spare his enemy's life? क्या कोई भी मनुष्य अपने दुश्मन या बैरी के जान को छोड़ेगा जब उसको मौका मिले? David was not looking at the outward man. लेकिन दाऊद उस बाहरी मनुष्य शाऊल को नहीं देख रहा था। He was remembering the anointing that he was anointed to be king of Israel. वो याद कर रहा था ये शाऊल परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया मनुष्य है इजराइल का राजा होने के लिए। Don't touch too deep, you might touch the anointing. ओ इतनी गहराई में किसी के मत जाइए, ऐसा ना हो कि आप उसके अभिषेक को स्पर्श कर लें।
Amen. आमेन। Ananias and Sapphira, हनन्या और सफीरा नाम पति पत्नी, they took it very lightly. उन्होंने पवित्र आत्मा को बहुत हल्के से We लिया। are talking of revival. और हम आत्मिक जागृति और बेदारी की चर्चा But when करते हैं। revival will come, judgment will also come. जब बेदारी आएगी उसके संग संग न्याय का भी आना है। Both of them died. और दोनों पति और पत्नी मर गए। And Peter told them, और पतरस ने उनसे कहा, why has Satan put in your heart to lie against the Holy Ghost? क्यों शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात डाली कि तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बोलो? You said you find pleasure in troubling people? ओ तुम कहते तुमको लोगों को सताने में आनंद मिलता है। Listen, सुनिए, Jesus said to Saul of Tarsus, यीशु मसीह ने तरशीश के शाऊल से कहा नए नियम में, why are you persecuting me? तू क्यों मुझे सताता है? He was not persecuting, he couldn't touch Jesus, वो तो यीशु को नहीं सता, यीशु को तो छू नहीं सकता था, but he was touching his people. लेकिन शाऊल मसीही लोगों को सता रहा था। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, to be on the safe side, सुरक्षित जगह में रहने के लिए don't talk and don't go against anointed people. अभिषिक्त परमेश्वर के द्वारा किए गए लोगों के विरुद्ध में ना बोलें। Don't go against the word of God. परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना जाएं। Don't talk lightly about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के विषय में हल्के तौर से बात ना करें। If you don't understand, यदि आप समझते नहीं हैं take out time and study तो आप समय निकालिए और बाइबल में पढ़ें with those people who believe and have received the Holy Ghost. उन लोगों से जानिए जो विश्वास करते हैं और जिन्होंने पवित्र आत्मा के दान को पाया है। Don't sit with mockers and scoffers. ठट्ठा करने वाले और निंदा करने वाले लोगों के बीच में ना बैठें। Don't grieve the Holy Ghost. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, He is the one who sealed you into salvation. क्योंकि वही आत्मा ने उद्धार की मुहर तुम पे लगाई है। Amen. आमेन। We will continue afterwards. हम और भी इसमें आगे देखेंगे प्रियो। You know, the book of Acts, जो प्रेरितों के काम की किताब है the book of the Holy Spirit. वो वास्तव में पवित्र आत्मा के काम Acts से of the भरे Holy Spirit. पवित्र आत्मा के कार्य लिखे हैं उसमें। Wherever you find, जहां कहीं भी आप उस you किताब know, में God is पाएंगे। in a hurry to baptize people. देखिए परमेश्वर भी आज बहुत उत्सुकतावश खड़ा है, उत्सुकता पूर्वक खड़ा है लोगों को बपतिस्मा देने के लिए। Ananias went to Saul and said to him, हनन्या शाऊल के पास जाकर बोला, Brother Saul, कहा हे भाई शाऊल, he was first enemy, वो पहले तो उसका दुश्मन था but now he's converted. लेकिन अब वो बदल गया था, मन परिवर्तन हो गया था। Jesus Christ sent me to lay my hands on you that you might receive your sight. और कहा हे भाई शाऊल, यीशु मसीह ने मुझको भेजा है तुम पर हाथ रखने के लिए ताकि तुम्हारा रोशनी वापस आ जाए। As he laid his hands, और जैसे उसने अपने Hallelujah. हाथ को उस पर रखे, his eyes opened, शाऊल की अंधी आंख खुल गई got filled with the Holy Ghost. और उसी पल पवित्र आत्मा से भर गया। Hallelujah. हालेलुया। God is in a hurry. परमेश्वर भी आज जल्दबाजी में है। Peter yet spake to Cornelius' house. पतरस कुरनेलियुस के घर में बैठ के वचन को बोल ही रहा था। He couldn't bring to conclusion his sermon. वो तो अपने संदेश का समाप्ति में लान निष्कर्ष में नहीं पहुंचा था The Holy Ghost fell upon कि them. सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया They spake in tongues. और जिन्होंने सुना वो सब अन्य भाषा में They बोलने लग गए, prophesied. भविष्यवाणी करने लग गए। Peter was pulled up by the council. ओ पतरस को लोगों ने उस समय के प्रेरितों ने उसकी को डांटा Why you did go to Gentiles? और पूछा तू क्यों अन्य जातियों के बीच प्रचार करने के लिए गया। So Peter had some group with him. तो पतरस के साथ भी कुछ भाई लोग गए हुए थे। He said we all went there. उन्होंने कहा कि हम सभी लोग वहां गए The थे, same way we were baptized, God baptized these लेकिन people. सुनो जैसे हम लोगों ने उस दिन पवित्र आत्मा पाया था वैसे ही पवित्र आत्मा का दान इन अन्य जातियों को भी प्रभु ने दिया They है। rejoiced. और वो सुनकर वो सब के सब मिलकर खुश God हुए। is pouring His Spirit on Gentiles. परमेश्वर आज गैर मसीहों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Let the fire of the Holy Ghost burn within us. पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर में जलने पाए May the प्रियो। anointing of the Holy Spirit dispel darkness from your home. पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके घर से उस अंधकार को हटा दे। Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर जाएं। Amen. आमेन। Spend time in prayer. प्रार्थना में समय बिताइए And your life will never be the same again. और आपका जीवन पहले के समान नहीं रहेगा प्रियो। John the Baptist said, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता I है, baptize you with water. मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. लेकिन वो जो मेरे बाद आएगा यानी
यानी यीशु, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा Receive that देगा। fire. उस आग को ले लो। When the Holy Ghost came, fire came upon them. और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर, आग की फटती हुई जीभें उन पर उतर आई। Have you received the Holy Ghost since you believed? और क्या उसने पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा का दान पाया जब तुमने विश्वास किया? You never heard about him. तो लोगों ने कहा कि हमने उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। He says, okay. तो उसने कहा ठीक And they है, believed. और उन्होंने विश्वास किया, They received. और उन्होंने फिर ग्रहण किया, Speak in tongues. अन्य भाषा में बोलने लग They गए prophesied. और भविष्यवाणी करने लग गए। Hallelujah. हालेलुया। What we need today? आज के दिन हमें क्या चाहिए? Not to grieve the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को शोकित करना Not to नहीं, blaspheme the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना, But receive it. परंतु पवित्र आत्मा को अपने लिए ले लेना। Your sons and your daughters. बाइबल कहती तेरे Hallelujah. बेटे, तेरे बेटियां, Your servants. तेरे दास दासियां, From generation to तेरी generation. आने वाली पीढ़ी दर It did पीढ़ी, not end over there. वो वहां पर भी Next. समाप्त नहीं हुआ। They're saying वो कह it रहे, ended during Acts. वो लोग कहते कि प्रेरितों के काम के बाद सब बंद हो गया। Today, आज के दिन millions and millions of people are speaking in tongues. आज लाखों करोड़ों लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। Signs and wonders are happening. चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। God is confirming His word परमेश्वर अपने कलाम को प्रमाणित कर रहा है। by signs following. चिन्ह जो उसके संग संग हो रहे हैं। Don't grieve the Holy Ghost. पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। Don't talk lightly about Him. पवित्र आत्मा के विषय में हल्के तौर से बात ना He is करें, God. क्योंकि वो परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। And He is so willing to come into your life. और वो आपके जीवन में आने के लिए इतना उत्सुक है। This moment, इसी क्षण even as we pray, जैसे हम प्रार्थना करेंगे, if you say, यदि आप अपने हृदय में कहें, I'm ready to receive you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मैं तुझे ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, Please come into my heart. मेरे हृदय में आ जा। Even now as I'm talking to you, और जैसे हम अभी आपस में बात कर रहे you हैं, feel something bubbling out from within your soul. आपके हृदय के अंदर से कुछ उमड़ता हुआ कुछ लग रहा है। You feel your tongue is getting into another language. आपको लगता है आपकी जुबान हालेलुया। स्तुति में कोई अन्य भाषा बोलने लग रही है। To receive it right now. इसी वक्त उसे ग्रहण कर लीजिए। Hallelujah. Open yourself and say, yes, please come, Holy Ghost. अपने आप को खोल दीजिए, बोलिए प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ तुझे। Amen. आमेन, Amen. आमेन। As I'm praying, जैसे मैं दुआ करता, we are praying for you. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे Open हैं। yourself up. अपने हृदय को खोल दीजिए। If you have taken things lightly, ask God to forgive us. और यदि आपने इसके पूर्व बातों को हल्के तौर पे लिया था, तो प्रभु से कहिए मुझे माफ कर दे। Even as we pray, और जैसे हम प्रार्थना you may begin करेंगे, to speak a few words आप हो सकता है कुछ अन्य भाषा के शब्दों को बोले, in a language you have not learned nor heard. ऐसी भाषा जो आपने ना सीखी ना सुनी। Do not quench it. उसको ना बुझाएं ना उसको दबाएं। Let it burst from within you. ओ तेरे अंदर से फूट निकले वो स्तुति। Thank you, Jesus. हालेलुया, धन्यवाद यीशु, Thank you, Holy Ghost. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, thank you for sending your promise. अपने प्रतिज्ञा को भेजने के लिए धन्यवाद। Lord Jesus, you said, प्रभु यीशु तूने कहा, I will send you the promise of my Father. मैं पिता के प्रतिज्ञा को तुम्हारे लिए भेजता हूँ। Tarry in the city of Jerusalem. यरूशलेम नगर में ठहरे रहना, To be endued with power from on high. जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ को ना पाओ। Even as your people are lifted up their lives and opening their hearts to you, जैसे आज लोग अपने जीवन को तेरी ओर और अपने हृदय को तेरे लिए खोल रहे हैं, fill them with the Holy Ghost and उनको fire. पवित्र आत्मा से भर दे। Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाओ। Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर जाओ। Be anointed by the Holy Spirit. आत्मा right के now. द्वारा अभिषेक्त कर दिए जाओ। Begin to speak that heavenly language. स्वर्गीय भाषा बोलने लग जाओ। Baba ba suili ri baba sikha mama hukeribi. Thank you, Jesus. We sing the song, Come Holy Spirit, we need thee. उस गीत को हम गाएं, पवित्र आत्मा तू आ। Glory, 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 glory. Come, Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come
When he shall come, जब वो आएगा he will lead you into all truth. वो तुम्हें सारी सच्चाई में ले जाएगा, He will empower you. तुझे सामर्थ्य से भर देगा, He will deliver you. तुझे छुटकारा देगा, He will set you free तुझको आजाद करेगा from sickness, from demons, from all evil powers of hell. बीमारी से, दुष्टात्मा से और सारी बुरी ताकतों से। Long time you look to man for healing. लंबे समय तक मनुष्य की ओर ताकता रहा अपनी चंगाई के लिए, Today, लेकिन आज के दिन turn your eyes on Jesus. अपनी आंख यीशु की ओर मोड़ दे। The Holy Ghost will do a job पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करेगा which you have been waiting for. जिसके लिए तू अब तक इंतजार कर रहा था। Be healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो Be जाओ। healed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ। Be free from all the oppression and demonic attacks. सारे दबाव और दुष्टात्मा के सताव से तुम छुटकारा पालो। In Jesus' matchless name. प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से तुम भर जाओ। Yes, even as you sing this song, जैसे हम इस गीत को गाते lift हैं, up your heart. अपने हृदय को प्रभु की ओर If you can, lift उठाएं। up your hands and यदि say, आप अपने हाथ को उठा सकते तो ऐसा Come, करिए। Holy Spirit, I need you. कहे पवित्र आत्मा तू आ, मुझको तेरी जरूरत है। Please come, Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in your strength and your power. Come in your own special way. Father, we pray this day, पिता आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं, even as your people hunger and thirst after you, जैसे तेरे ये लोग तेरी आत्मा के लिए भूखे और प्यास से हैं, sometime during the day, sometime during the night, दिन के किसी पहर, रात के किसी पहर, even as they call on your name, जब भी वो तेरे नाम को आवाज दें, may your spirit descend upon them. पवित्र आत्मा तू उन्हें मिल जाए। The situation of their family will change. उनके घर की और परिवार की जो वो स्थिति है बदल जाए। Oh, let it be so, we pray, Heavenly Father. ओ स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसा होने दे Let your word go forth. कि तेरा वचन पहुंचे, Set your people free. तेरे लोग जो बंधन में आजाद किए जाएं, Bless them all. उन सब को आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन।